and Mavinmagic 490. I don't know who's 490, but welcome. Okay, so today's session is more on the mindfulness series that we've been talking about. So, as you know, that my core area of interest, even in my business coaching that I do, I talk about mindfulness, and these are the unprecedented times. And mindfulness is something that cannot be used better than these times. अगर आपको mindfulness use करना है, this is the best time. This is what I believe. Right now, what is the topic for today? What is this? When you talk about mindfulness series, so what exactly is that I'm going to talk about today? Is what is your being in these situations? What is your being in any situation? And I'm coming from the space of my own experience, and I'm going to share my experiences as well. And however, I would like you to share a little bit of understanding about what do you really mean by being with yourself. I mean, we always listen from people around being with yourself, being with this, being with this, being with this. So, आपकी नजरों में being का महत्व क्या है? तो टॉपिक है आज का. You know, just be with your being. So, what exactly do you really mean? You're all trainers here, coaches here, but I really want to listen from you. What exactly do you mean by being? Being aware of the present. Okay. Being aware of every moment in the present. Beautiful. Being aware of every moment in the present. That is what you mean by being. Okay. Okay. Yes. Good. Anybody else? क्या लगता है being topic का जो है आज so the topic that we're talking about, right? So what exactly do you mean by that? Your being matters. This is what the topic name is today. आपका जो being है वो matter करता है, हर moment पे matter करता है. आपने मिस्टर दबास ने बताया कि being aware of every moment. ठीक है, ये हमारे को. This is what I understand about in the logical sequence. But what exactly is being? Being होता क्या है? What exactly is being? बीइंग मोमेंट टू मोमेंट होता है. कहीं भी आप बीइंग प्रेजेंट है, जैसे बीइंग हैप्पी है, राइट, बीइंग सैड है, राइट राइट. अब स्टिंग बीइंग अटेंटिव है, आपसे बात कर रहे हैं, आपको लिसन कर रहे हैं. एग्जैक्टली. बीइंग टू पर्सन टू टाइम टू टाइम, वी आर ऑलरेडी ए सोल बीइंग. दैट्स राइट. सोल वो अपने आप को जो हम सोचते हैं, दैट इज व्हाट वी आर एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ बीइंग. Right, right, right. Beautiful. So, what exactly is the distinction of being? क्यों बोल रहे हैं कि your being matters? Many a times when we are faced with challenges, many a times when we are faced with some issues in life, or probably when we are wanting to grow in some areas of our life, there is a constant conversation in the head to do something about it. To do this, to do that, so that we can have this. हम कुछ करेंगे, हमें कुछ मिलेगा. हम prayers करेंगे, तो हमें कुछ result मिलेगा. हम किसी के लिए help करेंगे, तो कुछ उसको फायदा होगा. When we do something, we'll get something. We'll do something, we'll get something. We'll do something, we'll get something. So the whole life, normally, or लोगों कुछ लोग होते हैं जो being में रहते हैं, पर मैं being के बारे में बताता हूँ. हम सिर्फ डूइंग और हैविंग में रहते हैं हमेशा, राइट? द गेम चेंजेस व्हेन वी शिफ्ट टू बीइंग ऑल द टाइम एंड लेट द डूइंग एंड हैविंग हैपन बाय इट्स ओन, राइट? सो नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक I'm going to give a very subtle and softer example. धीरे-धीरे some harder example में भी आते हैं. सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली में मेजर फर्क क्या है? क्या था मेजर फर्क? सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली था. Much more talented, much more
aggressive, practice भी ज्यादा करता था. सबसे ज्यादा उसमें मेजर फर्क क्या था? Anybody has an idea? What is the major difference between Sachin Tendulkar and Vinod Kambli, जो भी क्रिकेट को फॉलो करते थे? I'll shift to the deeper perspective, but I'll start with the softer part. So the major part was Sachin Tendulkar से ज़्यादा talented, ज़्यादा technical, ज़्यादा understanding cricket की विनोद कांबले के पास थी. But the major difference was it was his being consistent all the time, right? Now, whenever we are facing with a difficult situation, whenever we are facing a challenge, normally what we do is we just keep on doing something. ये करेंगे तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमारा बीइंग शिफ्ट नहीं होता है ना. बीइंग में ना फियर होता है कई बार. अरे ये प्रॉब्लम ना होता है, ये चैलेंज ना आता है, ये मुझे बीमारी ना आ जाए, ये सिचुएशन कहीं वर्स ना हो जाए, आसपास जो चीजें चल रही हैं, whatever is happening around what I'm seeing in that space is, will it going to get worse? क्या हो जाएगा? तो मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ठीक हो जाए? इम्यूनिटी के लिए क्या करूं? But most important part which gets missing is your being. We are, when we are in a being space of fear, insecurity, and we are in the space of what you can say, हमारे को डर होता है, हमको इनसिक्योरिटी होती है, और हमें बार बार ऐसे विचार आते हैं कि जैसे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम फियर के मोड में जब हम रहते हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं. हमारा वाइब्रेशन का जो लेवल होता है वो एक डिफरेंट होता है, तो हम उसी हिसाब से करते हैं. yesterday I'm going to share something. There is a challenge which I'm facing right from my family right now. तो हमारे पास अलग अलग मैसेजेस, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज में अलग अलग लोग को कुछ प्रॉब्लम चल रही है. तो व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग माय फैमिली मेंबर्स, वो सभी लोग फियर से ऑपरेट करके मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को. लेकिन द मोमेंट आई स्टार्ट I observed myself कि मुझे क्या हो रहा है, what exactly is happening to me. Am I being fearful, or am I being confident, or am I being energetic, or am I being compassionate? तो मैंने जब उसको देखा तो the shift happened with respect to how my surrounding world behaving. तो डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा डूइंग क्या होता है और हैविंग क्या होता है वो एक आउटकम है, लेकिन हमारा बीइंग क्या होता है, दैट बिकम्स अ मेजर डिफरेंस. So the shift that happened was that I actually was, when I was in meditation, I actually saw myself, I was being one with everyone. When I've been one with everyone, I was vibrating with a different frequency altogether. तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में पहले मैं वाइब्रेट कर रहा था, मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, मेरा कॉन्वर्सेशन करने का तरीका डिफरेंट हो गया. माय फादर वाज बिहेविंग इन अ डिफरेंट फैशन in these spaces. I took help from one of the fellow coaches. मेरे को फेयर हो रहा था कि वो बाहर जा रहे हैं, वो मेरी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, और बार बार वो फियर के बीइंग से मैं उनको बोल रहा था, पापा मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए. बट ही वाज इन अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर. वो सेइंग कि तुम्हें भी तो रिस्क है, तुम्हें भी तो है, मेरे को काम करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, मुझे नहीं पता. तो then I shifted my being to being patient. Like, let me be patient, let me see what happens, let me just shift my being instead of just worrying about कि मेरे को कौन से विचार आते हैं, कौन से विचार कंसिस्टेंट चलते हैं कि वो मेरे को फियर आ रहा है. मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं उस बीइंग में रह रहा हूँ, तो उस बीइंग में क्या शिफ्ट हो रहा है. द मोमेंट आई शिफ्टेड माय बीइंग, समथिंग हैपेंड विद माय फादर. He immediately talked to me. He said, I'm taking care of myself. Look, this is what is happening. I'm taking care of my immunity. I'm taking care of this. ठीक है, तुम चले जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोक रहा. तो now the conversations started in a different mode altogether, and that was a miracle for me. I was more into the space of doing something for my father, doing something for someone. But when I shifted my being, something changed.
you know. So now the whole game is only and only be who you are being at this point in time. When you said being aware of yourself, आप being aware हो तो being aware में आपके आपका being है क्या इस moment पे, who you are being right now, when you are talking to me, when you are listening to me, who you are being. Are you more towards uh, just listening only, or are you more towards being creative, or are you more towards being insightful? तो आप कुछ कुछ लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो वो उसका बीइंग कहाँ पर है, आपका बीइंग किस तरफ से चल रहा है, जिससे आप आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं. So the insight that I'm going to share today with you, the distinction is that when we are in the state of a different being, our action automatically changes. So we don't worry about the actions that you're going to do. Actions are going to come automatically to you, and the result is automatically based coming to you because of the being that is there with you. तो आपका being इस moment पे क्या है? Just can just quickly share who you are really being at this point in time. When you are listening to these news and listening to people who are talking of different ways, आपका being क्या है? Of course, doing में तो ये हो गया कि हमको टीवी नहीं देखना है, मुझे न्यूज़ नहीं सुनना है, मुझे किसी के साथ ऐसे बात नहीं करना, मुझे पॉजिटिव बोलना है, मुझे डूइंग में हो गया, मुझे हमेशा अच्छी सी बातें करनी है, मुझे लेकिन जब फियर आता है, जब इमोशंस आते हैं, तो who you are being at that point in time, right? So can someone share who you are being under these situations? आपका being क्या है, आपका being कैसे कैसे shift होता है different situations में, and are you being aware of the shifting of the being each moment in time? So that's what is something that I'm going to talk about today. So the practice has to be done. The practice of who you are being all the time has to be done. And the moment you shift your being, your doing automatically changes. तो आपको डूइंग पे फोकस ज्यादा नहीं करना है, आपको हैविंग पे फोकस ज्यादा नहीं करना, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ठीक हो जाएंगे सब लोग, सब चैलेंजेस ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, मुझे क्या करना चाहिए. The moment you are saying that I'm being secure and safe, I'm being happy and joyous, तो आप ये देखोगे कि आपको जो precautions लेने हैं वो लेंगे आप, right? So the distinction I want to talk about is that being, doing और having में बहुत major difference है. ये मैंने discover किया, पहले भी किया था, पहले भी बातें करते थे हम लोग, जब मैं coaching करता था, coaching करता हूँ अब, the whole shift is the being only. But last 5-7 days I practiced more on my being, which actually is giving me some kind of different results in the challenging situations. So guys, what is opening up for you in this conversation? What do you think? What is the difference between being, doing and having in your life? Please go ahead and share. आजकल के सर्कमस्टांसेस में तो बीइंग केयरफुल है. Okay. Yeah. बीइंग कॉशियस है. Yes. Okay. और जब बीइंग careful की बात कर रहे हैं, और तो बीइंग कंसर्न्ड है. हाँ, being concerned और careful की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और shift करना, वो कहाँ से आ रहा है? वो fear से आ रहा है या वो किसी और space से आ रहा है? Shifting is very important. The moment we're saying being careful, where it is coming from? It is coming from being fearful, being insecure, or you are बीइंग कॉशियस है. हाँ, being cautious है definitely है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे क्या है? Fearful नहीं है, cautious है. The need to be safe. Being safe, okay, being safe, right? और क्या being Being concerned. yes, हाँ, being concerned जब हम होते हैं तो कौन सी फीलिंग आती है आपको? जब हम being concerned होते हैं तो फीलिंग कौन सी आती है उस मोमेंट पे? What is the feeling that you feel from your heart when you say being cautious, being concerned? तो फीलिंग कौन सी आती है? The caring feeling. The feeling to care. हाँ, feeling caring again is a thought, right? मैं care करता हूँ, तो care एक thought है. Feeling कौन सी आती है?
when you say being concerned, being caring, To being take appropriate action. हाँ वो एक्चुअली वो डूइंग हो गया. सो फीलिंग कौन सी है? व्हेन यू से दैट आई एम बीइंग हैप्पी, तो फीलिंग कैसी आती है? व्हेन आई से आई एम बीइंग हैप्पी, तो फीलिंग कैसे? थिंक, अच्छा लेट्स गो टू अ मोमेंट जहां पे Of आप, euphorism. सॉरी, When I'm happy, I feel the feeling of euphorism. यस, यूफोरिज्म, राइट. बट क्या वो सेम फीलिंग आती है जब हम बीइंग कंसर्न्ड होते हैं? ये ऑनेस्टली बताइए आप. नहीं. जब बीइंग कंसर्न्ड, तो सेम फीलिंग आती है, राइट? जब बीइंग कंसर्न्ड होते हैं तो फीलिंग कौन सी आती है? डर की फीलिंग आती है, इनसिक्योर की फीलिंग आती है. क्या इनसिक्योर तो अगेन एक एक्शन वाला होगा, इनसिक्योरिटी में कोई थॉट आ गया, तो फीलिंग कौन सी आती है? बिकॉज हमारा जो हार्ट होता है ना, वो हमें बताता है कि हमारी फीलिंग उस मोमेंट पे क्या है, और हमारी फीलिंग जो होती है वो ही हमारी बीइंग होती है. आप कभी भी सिचुएशन में देखेंगे, जब भी आपको अच्छी चीजें, अच्छी न्यूज मिलती है, कोई अच्छी बातें आपको बताता है, व्हाट इज द फीलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम? जब आपको कोई अच्छी न्यूज बताता है, व्हेन समवन गिव्स यू अ गुड न्यूज अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हैप्पीनेस, अबाउट जॉय, अबाउट समवन इज रिकवरिंग फास्ट, लेट्स से एक न्यूज अच्छी से आ गई, बहुत जल्दी से रिकवर हो गए सभी लोग, आसपास के लोग, एक वैक्सीन आ गया और वैक्सीन से सभी लोगों के अंदर एक मेजर चेंज आ गया. अगर आपने उसको इमेजिन किया, तो कौन सी फीलिंग आएगी उस मोमेंट पे? आप फीलिंग के लिए सोचते नहीं हो, फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है. एग्जैक्टली. फीलिंग के लिए सोचते नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो द इनविटेशन टू यू राइट नाउ इज टू कॉन्शियसली बी अवेयर ऑफ द फीलिंग एंड शिफ्ट दोस फीलिंग्स. कि मेरे को फीलिंग शिफ्ट करना है, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू शिफ्ट माय फीलिंग. अब ऑटोमेटिकली आ जाती है, जैसे न्यूज आया एक फीलिंग आई, बट उस फीलिंग के साथ रहना है या मुझे इस फीलिंग को शिफ्ट भी करना है? क्योंकि जिस फीलिंग में आप रह रहे हैं, हु यू आर बीइंग इज गोइंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, नोइंगली और अननोइंगली. एंड आप इसको देखना, यू नो, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग्स के सामने जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, वो दो चीजें करता है. या तो वो फाइट करता है या वो फ्लाइट करता है. Either he fights with the situation or he goes away from the situation. तो अगर आपने बोला कि यार मेरे को न्यूज नहीं सुनना है, मेरे को, मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ये चीजें नहीं सुननी है, तो हालांकि अच्छा स्टेप है, हालांकि अच्छी चीज है, क्योंकि आपका एक नया बीइंग रेडी होता है, लेकिन देखना कि वहां पे मैं भाग रहा हूँ, उस सिचुएशन से भाग रहा हूँ. लेकिन when we are mindful of yes news is there, मेरे बैकएंड पे वो न्यूज तो है, अगर मैंने टीवी को बंद भी कर दिया तो मेरे बैकएंड पे वो न्यूज है, चल रहा है, तो मैं उसको हैंडल कैसे करूंगा? आई कैन हैंडल ओनली विद माई बीइंग, ओनली विद माई बीइंग. यू नो द न्यूज इज नॉट गोइंग टू चेंज, यू नो. जब शिफ्ट भी कर दिया, मैंने टीवी पे छोड़ भी दिया, मेरे को बोलते थे, मेरे को तो फिर थॉट्स आते थे, यार यार मैंने टीवी को तो छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरे को डर तो अभी भी आ रहा है, क्या हो सकता है? फिर मैं थोड़ी देर, एक घंटे के बाद फिर मैं देखूंगा, अरे हाँ देखो तो सही क्या हो रहा है, और फिर होप होती है. The hope is to maybe the situation is going to change. So the whole game is shifting from doing and having to being consistent. मतलब कंसिस्टेंटली आप बीइंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. जो भी आपने करना है वो करते रहेंगे. आप जैसे कॉन्शियस पॉजिटिव के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, आपके पीछे का बीइंग क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मे बी यू आर बीइंग होपफुल अंडर दिस सिचुएशन, मे बी यू आर बीइंग अवेयर कि हाँ मुझे रोज आके मुझे अच्छी चीजें मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, इसकी वजह से मैं आता हूँ. बिकॉज देयर इज एन एक्शन दैट यू ऑटोमेटिकली डू, बट अगेन वो एक्शन कहाँ से आया? दैट यू आर बीइंग होपफुल इन दीज सर्कमस्टेंसेस. यू आर बीइंग समवन हु understands the value of conscious positive program, and you're being clear that this is going to help me. You're having faith in your mind, you're having, you know, being maybe for some people coming to the conscious positive program, being inquisitive that what I'm going to get.
from today's session? What is the insight I'm going to get? Am I being inquisitive right now? So the game that I'm talking about today is actually coming from the space of my own experience in the last 7 to 8 days. And that's why I wanted to share with you as a coach that when you shift your being, things happen for you. आप आसपास के surroundings के साथ कुछ नहीं कर सकते. You know, yesterday I got a video from someone. WhatsApp पे कोई वीडियो आ रहा था. There was one from RJ Naved and one from गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. उन्होंने बोला कि आप जोक्स शेयर कीजिए, आप लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर कीजिए, आप फेथ शेयर कीजिए, आप पॉजिटिव न्यूज़ शेयर कीजिए, आप बार बार उस चीज़ों को शेयर करते हैं, फॉरवर्ड्स करते हैं, तो लोगों में फियर की फीलिंग आती है. अब what is the context in this whole sharing is the shifting of being happens, you know, the shifting of being happens. I don't know whether you, how many of you have watched that video of Rajan Navid. उसने Rajan Navid को किसी को कॉल किया था और 67 to 68 years का वो व्यक्ति था. उसको उसने और वो डॉक्टर से बात करना चाह रहा था कि मेरे को बहुत डर आ रहा है कि पता नहीं ऐसे सिचुएशन को देखने के बाद मैं कहीं मर ना जाऊं. तो उस मोमेंट पे उसने कहा ठीक है, मैं आपको मैं केयर करता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ. लेकिन उसने 2-4 जोक्स शेयर किए. And the moment he shared those jokes, you know, he shifted his being, and he was aware कि हाँ मैं इस मोमेंट पे तो अच्छा हूँ ना, इस मोमेंट पे तो मैं ठीक हूँ ना, इस मोमेंट पे अगर मैं ठीक हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए. तो वो बात की बात है, लेकिन मैं पहले तो अपना बीइंग को चेंज करूँ. अगर मैंने बीइंग फियर से ऑपरेट करके काम करना शुरू किया, मैंने इम्यूनिटी के लिए काम भी किया, लेकिन डर लग रहा है, डर से ऑपरेट किया, तो फिर डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं. आएंगे तो सही रिजल्ट्स, बट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं. सो maybe it gets a little more intense when you talk more about it. But what I'm going to share today, what I've shared today is from my own experience that आपका being क्या होता है, हर मोमेंट पे आपका being क्या होता है. अगर आप उसकी अवेयरनेस आपको आ जाती है तो the game changes for you. And tried it out कि आप इमेजिन कीजिए इस मोमेंट पे कि अगर सब कुछ हैप्पी वाला मोमेंट है, अगर इस मोमेंट पे सभी लोग सेफ हैं, सभी लोग सिक्योर हैं, सभी लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट पे, तो फीलिंग कौन सी आती है उसको इमेजिन कीजिए और फिर अपने बीइंग को शिफ्ट कंसिस्टेंटली करते जाइए. आप मेरे को अभी हुआ है मैं बीइंग राइट नाउ. जैसे मेरे को किसी का फॉरवर्ड आया, मेरा बीइंग क्या हुआ. जैसे किसी ने अच्छा फॉरवर्ड किया तो मेरा बीइंग क्या शिफ्ट हुआ. फिर मेरे को एक थॉट आया, कंसर्न्स का थॉट आया, जो आएगा ऑटोमेटिकली आएगा, डर लगेगा. फिर मैंने अपने बीइंग को कहाँ शिफ्ट किया. So it is a consistent practice that we got to do. You cannot change the outside world, you cannot change what's happening around, but you can definitely change your being at all point in time. All right. So that's all I want to share. That's all I want to talk about today. Over to you, and you can share more experiences from your side. आपको क्या लगता है, क्या समझ में आया आज, what exactly. Let's have a conversation and let's talk more about the being part in your life. Please go ahead. You know, I really like this session today, and this thing was actually going on at my place also, because I had to go for a voice recording since the last week, and my mom was not allowing me to go there because you know, you have to remove your mask over there because you're recording your voice. Yes. So I was trying to convince my mom to allow me to go. She was not allowing me. फिर बाद में मैंने सैटरडे संडे उन पे बहुत काम किया और फिर कल मैंने उनको प्राणायाम करवाया, जिससे उनके स्टेट ऑफ बीइंग बिल्कुल चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि अंदर से शांत हो गई. एंड आई दिस वाज अ गेम चेंजर. पूरा गेम ही चेंज किया. मैं 2:30 बजे गई, मैं 7 बजे लॉकडाउन के पहले वापस भी आ गई और ठीक भी अच्छा भी लग रहा है. तो मैंने वो प्राणायाम उनका वो करने के बाद शी वाज रियली फाइन. तब तक वो ना ही बोल रही थी कि तुमको सुनना ही नहीं है तो मैं क्या करूं, यू नो, लाइक दैट. Because that way, you know, I know that was coming out of care. Yes. It was coming out of total parental care. Yes. But now that was work which I also had to do. So ये प्राणायाम करने के बाद उनका जो स्टेट बीइंग जो है वो ठंडक महसूस हुई, उनका जो फियर है वो निकल गया.
So this is what we have to, because she's also hearing the media, she's also hearing all the news, and many of her relatives have also got it. So it's right for everybody to be in fear and being in care, you know. Yes. This is what I wanted to share. Yes. This is relevant to what is going on. Exactly, मानसी. और अगर आप फोकस डूइंग पे करते हैं कि मुझे कन्विंस करना है, मम्मी मैं ध्यान रख रही हूँ, आप भी ध्यान रखो. अगर आप फोकस डूइंग पे करते, तो it would have been a conflict. It would have been a dialogue of conflict. अरे तू समझती नहीं है, तेरे को प्रॉब्लम नहीं पता, ये नहीं पता, फिर आपके मन में भी constant fear आता. तो what you exactly did here, the first you shifted your being from fear to being patient. Okay, let me just see what was going to happen, what's going to come up for me. So आपके पास एक नया idea है कि चलो let me help her with a pranayam so that she can feel secure. So उन्होंने प्राणायाम किया, पहले आपने अपना being shift किया, फिर उनका being shift हुआ. तो पहले तो हमें अपना being shift करना. The moment we talk to people, हम पुराने being से लोगों से बात करते हैं, पुराने being से लोगों के साथ चीजों के साथ conversation करते हैं. जैसे मैं अपने फादर का एग्जांपल दिया. So moment we shift our being, things happen for you. You get new ideas, you get new areas where you can start working. जहाँ पे अभी कभी कुछ भी काम नहीं किया, नई संभावना खुल सकती है जो आपको पता भी नहीं है, नई क्रिएटिविटी कुछ. अब राइट ना, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट आपके साथ बात करने का सिर्फ एक ट्रेनिंग का नहीं है कॉन्टेक्स्ट कि ठीक है मेरे को यहाँ पे 8 o'clock मेरे को जाना है और मुझे बात करनी है. मैंने जब अपना बीइंग शिफ्ट किया डिफरेंट वाइब्रेशन से, yesterday I just thought about it. I said it is my responsibility that अगर सभी का बीइंग शिफ्ट हो रहा है, सभी का बीइंग शिफ्ट कंसिस्टेंट हो रहा है, तो वर्ड में क्या क्रिएट हो सकता है. अभी तो क्रिएट हो रहा है वो तो डूइंग से हो रहा है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन सभी का बीइंग शिफ्ट हो रहा है तो व्हाट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन. सभी की वाइब्रेशन अगर हाई लेवल पे ही चल रही है, हेल्दी वाइब्रेशंस चल रही है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है. दैट इज आई वांटेड टू पुट this conversation across people right here. So of course जो आप करना है वो करेंगे, definitely करेंगे. आप conscious positive में लोगों को सुनेंगे जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं यहाँ पे, वो definitely करना है और definitely योगा भी करना है. पर being क्या है, किस space से करना है, वो important है. Can I share? Yeah, please go ahead, Pooja. Yes. I feel just doing also comes from a very kind of a mixed state of worry and fear. Yes. In the sense कि every time we have pressure कि हमने deep breathe करना है, हमने gratitude में रहना है, yes. हमने meditation करनी है, हमने now में रहना है, हमें conscious रहना है. Yes. So even these tools, if they're just done with the approach of doing, there's yes. somewhere a fear factor involved in it कि अगर ये काम नहीं करा तो vibration low हो जाएगी, yes. ये काम नहीं करा तो ये चीज चली जाएगी. Whereas if you just incorporate that and it becomes a part of your being, then it flows with a lot of love, ease and compassion. So obviously the vibration changes. Exactly. You just got it. You just got it. I mean, thank you for really sharing that, you know. हमें कितना प्रेशर होता है यार, ये करना है, योगा करना है, दवाई लेना है, इम्यूनिटी के लिए कुछ काम करना है, लेकिन हमारा बीइंग वही है. डर लगता है अभी किसी का फोन ना आ जाए, कोई न्यूज़ ना आ जाए. और and that happened with me also. मैंने कहा मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मैं किस बीइंग से ऑपरेट कर रहा हूँ. And thank you, Pooja. I mean, yesterday I had a conversation with you. I mean, you really shifted my being, and of course there was a different conversation, but मेरे को जो insight मिला आपके साथ बात करके, you know, I shifted my being and the whole game changed for me. Yesterday से आज तक अभी moment में रह रहा हूँ. I'm being present to moment by moment, right? Good. So that's a good insight. I feel it's like just being in the doing is like a adulterated effort. So you get an adulterated result. Yes. But being is 100%. It's pure yes. potent, so you get a pure potent result. Yes. ये सोचो कि इसे आपके ग्लास में एक गंदगी है और वो बैठ गई है और आप उसके ऊपर अच्छे से अच्छा जूस बना रहे हैं, अच्छे से अच्छी उसका शेक बना रहे हैं और बहुत अच्छे से झाग आ रहा है, लगता है बहुत हेल्दी शेक होगा, लेकिन नीचे तो गंदगी है, वो जो नजर नहीं आ रही है उसको क्या करोगे आप. ऊपर से जितना मर्जी करोगे, लेकिन नीचे की गंदगी है वो तो पूरे ग्लास को कंटामिनेट कर चुका है. Right. So yes, Pooja, definitely. You know, I had analyzed this concept of being and doing in the context of weight loss for someone. Yes. Like I felt like when that person was in a pressure कि मुझे exercise करनी है, yes, because I have to lose weight. Yes. So the energy he was sending to his cells was of fear and worry. Yes. And it was not like a relaxing energy.
So it was, you were not in gratitude for your body at that time. So the body was holding up because of fear. This is what happens with fear. Now you start holding up things. Yes. Whereas I thought that if you start be in the being of being an exercise, let it come to you naturally and not with the pressure. Yes. You know, nahi kara to kya ho jayega. So I feel there is more, you know, you are giving more love to your body, and everything has to show up only in the vibration of love. So your body will show up to those exercises and diets also when you're doing it with love, not out of fear and worry. Yes. So अभी एक प्रेशर और भी आ जाएगा, मुझे बीइंग में रहना, मेरा बीइंग चेंज करना, yeah, ये pressure है, true. मेरा बीइंग चेंज करता रहना. No, the game is not about कि उसको resist करना है कि जो हो रहा है. The moment you are aware कि हाँ ये fears आ रहे हैं, ये thoughts आ रहे हैं, then that being aware होके ही आप shift कर सकते हो. That I think, you know, happens because when we take too much pressure of just doing everything today, कि आज अगर हमने being के बारे में सुना, we feel that by the end of evening हमें 100% being में आना है. We have to understand it's a gradual and a slow process. Only then it will work out. Yes. That's when the pressure goes away. Yes. So instead of saying gradual and slow process, instead we got to be consistent in that journey. Yeah, consistent is a better word. Yeah. कॉन्शियस प्रैक्टिस करते रहना. ग्रेजुअल का मुझे नहीं पता, बिकॉज ये भी हमारा माइंड का गेम है. बोलते हैं कि हाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे. ये भी माइंड ही बोल रहा है. बट मोमेंट यू प्रैक्टिस एंड यू आर इन डिफरेंट वाइब्रेशन, उस और वो जो वाइब्रेशन है उसका कोई टाइम और उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कब आपको वो चीज दे सकता है. सो आइडिया इज टू शिफ्ट द वाइब्रेशन व्हेन वी आर शिफ्टिंग आवर बीइंग, एंड व्हेन यू आर इन डिफरेंट वाइब्रेशन, थिंग्स स्टार्ट शोइंग अप फॉर यू from enormous speed. This is maybe I've actually experienced in my life. Then doing is more result oriented also. Yes, doing is more result and result Being oriented. is not very result oriented. You are just there without expectation. Exactly. Beautiful. Thank you. Anybody else want to share what's opening up for you in this conversation between me and Pooja and everyone? So please go I ahead. just want to ask this question. Yes, please go ahead. See, being, as you said, being के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी every time. हाँ. And how long? Yes, exactly. How long will it take to shift your being? Yes, and that's what the game is. Being के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब फिर डूइंग में चला गया. फिर डूइंग में चला गया. Yes. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. How long it is going to take? फिर कौन सा being है? Anxious. अरे कितना टाइम लगेगा, वो फिर being चेंज हो रहा है हमारा. So the idea is कि बार बार मन डूइंग में जा रहा है, बार बार आपको बीइंग में आना है और देखना है कि मेरे से क्या होता है. आपको नहीं पता कि आपका नेक्स्ट मोमेंट कॉन्शियस पॉजिटिव प्रोग्राम के बाद अभी खत्म करोगे या प्रोग्राम को एंड करोगे तो क्या होगा. आपको सिर्फ फोकस करना है मेरा इस मोमेंट में बीइंग क्या है. When I'm being aware, when I'm being happy, when I'm being compassionate to my family, देखना आपसे miraculously actions होंगे. मेरे से कई बार होता है कि जैसे the moment मेरे भी बोलते हैं तुम तो ये कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारे को ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रख रहे हो. तो मैं उसको रिस्पॉन्ड जब मैं करता था तो मुझे लगा हाँ मैं तो डीलिंग कर रहा हूँ. लेकिन the moment I say I'm being compassionate at this point in time for my family, मेरे को मैं उसको आराम से भूल गया, आराम से फॉरगिव भी कर दिया. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वो क्या बोल रही है. मैं उसके शूज में चला गया कि वो क्या फील कर रही होगी. ऑटोमेटिकली मैंने उसकी हेल्प करनी शुरू कर और मुझे पता भी नहीं कि मैंने क्या कर दिया. वो चीजें होनी शुरू हो गई मेरे साथ. तो उसको स्पिरिचुअल वर्ड में, हम कल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल वर्ड में बोलते हैं अनुभव. अनुभव हमारे को अनुभव क्या होता है. नॉर्मल लोग जो हम ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स के साथ जो डिफरेंस है वो एक मेजर डिफरेंस है. एनिमल्स सिर्फ डूइंग में ही रहते हैं, वो अपना अनुभव नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि अनुभव क्या होता है. ह्यूमन बीइंग्स अनुभव कर सकते हैं और वो ही बीइंग है कि मेरा बीइंग क्या है, मैं अपना अनुभव कैसे कर रहा हूँ. हाँ फियर वाले थॉट्स आ रहे हैं, हाँ ये मेरा how am I being, I'm being fearful. Now there is a way to shift the shape, shift the being. फियर कहाँ से आ रहा है? थॉट्स की वजह से आ रहा है. तो मैंने अपने विचारों को भी शिफ्ट कर दिया, मैंने बीइंग को शिफ्ट कर दिया. पहले तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि आई एम बीइंग कंपैशनेट, आई एम बीइंग हैप्पी, आई एम बीइंग जॉयस. मैंने वहां से ऑपरेट किया. फिर देखो मेरे से क्या एक्शंस निकला. सो एक्शंस एंड एज Pooja also said,
doing and having is not that important. Only focus on being. That's it. Results आने ही वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता. अपनी intention डालो, being में रहो, results आने ही वाले हैं. क्योंकि जब आप being में रहते हो, तो actually when you're in high vibration, you are actually connected with the huge possibility. अभी आप डूइंग में हो तो सिर्फ लिमिटेड आपकी अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटी से ऑपरेट कर रहा है, जो मेरी बॉडी है. लेकिन आप बीइंग में रह रहे हो, यू कनेक्टेड विद द होल बुफे और होल यूनिवर्स पॉसिबिलिटी जो आपके थ्रू एक्सप्रेस हो सकती है, राइट? सो आई नो इट्स साउंड लिटिल हेवी, बट द आइडिया इज टू शिफ्ट फ्रॉम that being to those be that being, and that is the consistent practice. और कोई प्रैक्टिस नहीं करना. मेडिटेशन में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस वो भी करते रहना, लेकिन वो आइडिया क्या है, शिफ्टिंग करना कंसिस्टेंटली बीइंग का. या थैंक यू. Yes, so anybody else want to share before we end the session? Anybody else? Understood this concept. So is it possible for you to explain it a little more to me? Okay. Thank you. So right now there is a being in you who is curious to know more so that I can get the distinction between being, doing and having. So first of all, acknowledge, yes, ये being है, मेरा curious हूँ, right? अच्छा, अब the moment I'm curious, so what is that I'm going to shift myself from? मेरा पहले क्या है, curiosity में क्या है कि मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे ध्यान जा रहा है. लेकिन जैसे मैंने अपना being shift किया कि curious हूँ और I'm hopeful that I'm going to get this distinction between being, having and doing. तो जैसे पूजा ने शेयर किया, जैसे मैंने शेयर किया, so होता क्या है कि हम normally जब भी हम डूइंग में रहते हैं, हम और हैविंग में रहते हैं, हम सिर्फ एक्शंस करते रहते हैं. हम सुबह उठते हैं, हमने प्राणायाम किया, हमने अच्छा इम्यूनिटी का खाना खाया, हमने वो किया और हमें श्योर हो गया कि हम अच्छी हेल्थ में हम चल रहे हैं. ये डूइंग है और हैविंग है, ये चल रहा है, ये गेम चल रहा है. कई बार कॉन्शियस है, कई बार अनकॉन्शियस है, चल रहा है वो गेम. सुबह से शाम तक चल रहा है. टीवी देख लेते हैं, मन में बोला, किसने ऐसा बोला तो वो कर लिया, मेरे को कुछ फीलिंग अजीब सी आई तो मैंने उसको फीलिंग को चेंज किया. तो ये डूइंग और हैविंग में हम कंसिस्टेंटली चल रहे हैं. वी आर कंसिस्टेंटली मूविंग इन दैट डोमेन ऑफ डूइंग एंड हैविंग. नाउ द इनविटेशन टू यू इज दैट व्हेन यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एंड हैविंग, आप थोड़ी देर रुक जाते हो. ठीक है, मैं कर रही हूँ सुबह से शाम तक, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग, आई एम हैविंग दिस, I'm doing this and having this. Let me just sit with myself. कि उसके पीछे कहाँ, who am I being, जिससे वो actions निकल रहे हैं. जैसे when you are ecstatic, your actions are different. When you are sad, your actions are different. When you are hopeful, your actions are different. Your body changes. आपकी body एकदम change हो जाती है. जब आप when you are confident, your doing changes. आपका different level पे आता है. When you're being creative, आपके अंदर creative ideas आते हैं. और when you are feeling hopeless, यार एक कुछ भी नहीं हो सकता आसपास, तो different level पे आप actions आपके आते हैं. आप चुप बैठ जाओगे, आपकी body नीचे हो जाएगी, आप क्या हो रहा है यार, ये हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहीं से ही आप ऑपरेट करते रहते हो कंसिस्टेंटली. सो लिमिटेड एक्शन लेते हो आप, लेकिन जैसे ही आपने बीइंग को शिफ्ट किया, हाँ, डिस्पाइट ऑफ व्हाट आई डू, डिस्पाइट ऑफ व्हाट आई हैव राइट नाउ, सो am I going to shift myself? Can I shift myself from being sad or being hopeless to being confident, being faithful, being patient and being aware? जैसे मैंने शिफ्ट किया तो फिर मन डूइंग में आता है, अरे यार मुझे कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं शिफ्ट करता हूँ. कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अपने साथ रहना है और अपनी बीइंग को शिफ्ट करते रहना है. ऑलराइट, मे बी आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पूजा कैन एक्सप्लेन you more. Uva, what do you say? Did you get what I'm saying? नहीं, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. बीइंग फियरफुल है आप, तो आप उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि यू आर बीइंग फेयरफुल.
yes, जैसे आपने एग्जांपल दिया बाहर नहीं निकलना, yes, तो आप हमेशा बीइंग फियरफुल हो, yes, पर आपको काम से जाना है, आपको पता है कि ये भी मुझे करना जरूरी है, yes, दिस yes, इज आल्सो ए नेसेसिटी, yes, तो आप अपना बीइंग शिफ्ट करते हो, yes, मेरे को फियरफुल नहीं, मेरे को प्रोडक्टिव रहना है, yes, तो yes, प्रोडक्टिव रहना है तो यू आर बीइंग शिफ्ट, yes, दैट्स हाउ यू गो आउट, अदरवाइज यू वोंट गो। yes, अब exactly, जैसे आजकल तो चल ही रहा है कि हमारे जैसे लोगों को तो बाहर निकलना ही नहीं है, yes, पर फिर भी जाना तो पड़ता ही है, अब डॉक्टर के पास जाना है या Yes. दवाई लेने जाना है, हाँ. मंगवा भी लेते हैं, पर फिर भी yes, थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज करनी है, तो वो Yes. तो उसके लिए तो हवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना, yes, दैट्स हाउ you shift your being from being fearful to being active, being Yes. productive. yes, That's what I feel. I don't know whether I have explained it or not. exactly यही है. So Uma, the simple understanding is हमें we get only under the domain of doing and having all the time. The distinction is doing and having के पीछे कुछ है. There is another distinction which is called being. Right. When I'm being someone, only then I do certain things. So although it is visible that I'm only have to do something so that I have something. Only that I do something. ये करूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा. मैं इसलिए कर रहा हूँ. So but there is a action has an equal and opposite reaction. Sorry. Every action has an equal and opposite reaction. What doing that? Yeah. So again, that is an understanding in our head. Every action has equal and opposite reaction, right? बिल्कुल सही है. इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एक्शन का रिएक्शन वो डूइंग और हैविंग में आ गया. मैं एक्ट कर रहा हूँ, उससे रिएक्शन हो रहा है. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम बीइंग पेशेंट. ओके, देखता हूँ कि मेरे से एक्शन कौन सा होता है, रिएक्शन कौन सा होता है, वो मैं देखता हूँ. आई एम बीइंग एन ऑब्जर्वर अबाउट माय एक्ट. So you go into a kind of a stillness mode. Yes, that shift. Yeah. Yeah, I mean you just become an observer rather than you become objective rather than subjective. को देखोगे आप. Yes, that मैं क्या happens. कर रहा हूँ. और उसके लिए स्ट्राइविंग नहीं करना है, कुछ स्ट्राइविंग नहीं है. इसके लिए क्या कि आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हु एम आई बीइंग राइट नाउ. एम आई गोइंग टू मेक दिस चॉइस ऑफ यहाँ पे मेरे को रहने से ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, तो मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ. तो वो स्टिलनेस आएगा, स्टिलनेस से कुछ नया एक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा. Yes. Sharang, you raised your hand. What, you have any question? Yeah, no, I think I had a sharing that doing and being में जैसे I think distinction एक हो जाता है, जैसे किसी ने आपको बोला कोई भगवान का पाठ करना है, Yes. कि भाई इतने बार आपने करना है, तो आप उस doing में लग जाते हो, भाई मैंने इतनी बार तो करना ही करना है. Yes. And being में होगा अगर आप भक्ति में चले गए, Yes. without expecting this thing, you Yes. being more love and compassionate towards Yes. the God and the ideal behind it. Yes. So that will be a big distinction when you are doing it and when you are in the being of, Yes. being with God and feeling of His. Yes. Absolutely yes. So Very good. focus doing में चला नहीं, भक्ति ऑटोमेटिकली निकलेगी ना. मेरे को भक्ति करनी नहीं है. When I'm connected with that source, when I'm feeling that love from inside, bhakti automatically gets expressed, right? There'll be no pressure when I'm, Exactly. There is no pressure. that feeling. हाँ, मुझे doing और having में एक pressure होता है कि मुझे करना है, करना है. तो हम 50 चीजें करते हैं जिसका रिजल्ट सिर्फ 2 चीजों में आता है. हमें पता नहीं चलता और फिर हम बोलते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा. पर हम जब बीइंग में आते हैं तो 2 अच्छी चीजें ही करते हैं हम. And you are in the flow, I feel. From the heart, you are in the flow. Exactly. वो flow होता है. और actually when you are consistently practice going into the being, वो doing और having का word रह ही नहीं जाता है. एक चीज ऐसी आती है कि जब doing और having का word रह नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं being मेरा तो सिर्फ एक ही रोल है कि मुझे being मेरा है. इसका एक और एग्जांपल है being in love. Yes. तो being in love होता है ना, फिर आपको उसके लिए किसी को, बच्चों के लिए जैसे माँ बाप को प्यार होता है, हाँ, तो प्यार ही होता है उनके लिए, तो और कुछ होता ही नहीं. Yes. So all the time. Yes, जब being loving होगा तो बच्चा जैसे मर्जी मिसबिहेव भी कर रहे हैं तो भी being love होगा. पर होता क्या है कि पेरेंट को लगता है कि जैसे उसने मिसबिहेव किया, अरे इसको तो कुछ करना नहीं आता, ये तो बदतमीजी से बात कर रहा है, तो ऐसे बोल रहा है, ये तो ऐसे कह रहा है. तो आपका शिफ्ट कहाँ पे हो गया? being insecure, being fearful, being feeling, being bad हो गया.
लेकिन जैसे ही आपने बोला वहां से भी ये लव से बोला आई एम बीइंग लविंग फॉर माय चिल्ड्रन, आपको वहां से भी कुछ अच्छा नजर आएगा. हाँ, मे बी ही इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट. मे बी ही इज डिस्ट्रैक्टेड, दैट इज व्हाई ही बिहेविंग लाइक दैट. मेरे को अपना लव नहीं छोड़ना. आई एम बीइंग लव्ड, आई एम बीइंग लव्ड, आई एम बीइंग लविंग ऑल द टाइम. Yes, exactly, Preetham ji. You really got that point. ये डिस्टिंक्शन लैंडमार्क में क्लियर हुई. हाँ, yes, yes, definitely. Yes. वहाँ भी clear हुई थी. Yes, yes, definitely, yes. So thank you guys. Thank you. Thank you, Sharankshe. The pleasure and enjoyment is lacking.